Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are safe and fine at your homes. Dear students, as you know that we are discussing about the course of fermentation biotechnology, and up till now we have discussed the different aspects, or you can say the biochemistry of fermentation, the different type of processes, the different type of products which are produced due to this fermentation technique. But this we need to go ahead of this discussion, because this fermentation process is basically established at a scale which is the industrial scale. So whenever you move toward industry for the production of different substances at huge, at bulk amount, so you need to upscale the process. And for this upscaling, there are different, you can say, different aspects of that, different disciplines involved in this. And in your third lecture we discussed um, about the industrial processes, which gives you different type of products. So in this lecture, which is introduction to fermentation process, we will see that how this process, it's comprised of brief background of fermentation again. And then we discuss the chronological, you can say, the review of how this fermentation technology, um, in different passage of time, how it evolved. So we will discuss about the chronological aspect of fermentation technology. So for references, there is only one book for the references: The Principle of Fermentation Technology by P.F. Stanbury, Whitaker and Hale, second edition. I'll upload this book on your LMS account, so you can access this book. This is very good book about fermentation technology, and it's having all the basic principles which are involved in it. It's a very good book. You can go through it. So again, starting from the introduction, the fermentation is derived from the Latin word which is fever, which means to boil. When you boil something, it's give you some products, and this is the fermentation. So but we know that in fermentation there are different processes, different, you can say, different person belong to different discipline, look toward fermentation in differently. Like if you are a biochemist, then you see that there is a conversion of sugars to alcohols using yeast. If you are microbiologist, you see that spoilage of food by microorganism, chemical conversion of carbohydrate into alcohols and acids. But if you are, you can say, a technologist, you see this fermentation process as a process that produce alcoholic beverages and other dairy products. And regarding the again, from the biochemistry perspective, it's an energy releasing metabolic process that takes place under aerobic anaerobic conditions only. So these are the different aspects to at which through which we can look at fermentation process. So all of these, you can say, aspects are very much correct in keeping their background in view. So fermentation has come to different meanings to different biochemists and industrial microbiologists. So its biochemical meaning relates to the generation of energy by the catabolism of organic compounds, whereas for the industrial microbiology, it has a broader terminology. So in microbial sense, fermentation may be defined as a process of growing of a culture of microorganism in a nutrient medium and thereby converting feed into a desired product. And the products have different examples like ethanol, lactic acid, beer, wine, etc. So it's all about where you are going to apply this fermentation. If you are discussing, if you are looking at the biochemistry, how these microbes, they are going to utilize different nutrients, how they catabolize different nutrients and produce different products, obviously. And that product, if it is of you can say, beneficial for human being, so that product, along with that particular microbe, with that nutrient, it needs to be upscaled for the production of bulk amount of that desired product.
So here you can see that the glucose molecule is converted into pyruvic acid using this NAD, the energy releasing process. The NADH is produced, and this pyruvic acid have different fates. If this pyruvic acid is available to propionibacterium, then this bacterium utilize this pyruvic acid and produce carbon dioxide and propionic acid, and at the same time it produces this the desirable product is cheese, which is Swiss cheese. If this pyruvic acid is utilized by Aspergillus, Lactobacillus, or Streptococcus, they convert this pyruvic acid into lactic acid, and that lactic acid gives the tangy taste toward the cheddar cheese, yogurt, and soya sauce. Again, if this pyruvic acid is available to yeast Saccharomyces, then they produce ethanol, and ethanol along with carbon dioxide, it gives you wine and beer. Here you can also see that homolactic and homo and hetero fermentative products. If Clostridium is there in the medium and pyruvic acid is available to Clostridium, then it converts into acetone and isopropanol. Pyruvic acid is get converted into acetone and isopropanol, and energy is released by the using of NADH into NAD. Energy is, you can say, NADH is used, energy is utilized, and it gives you nail polish remover and rubbing alcohol. They are used as a commercial product. And if this is E. coli or acetobacter, then it convert into acetic acid, and that acetic acid is used in vinegar, whether it is a simple vinegar or is apple cider vinegar or it's something a vinegar of some vegetable or fruit. They all because of these E. coli and acetobacter. Okay. नाउ टॉकिंग अबाउट द रेंज ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, अब हम चूंकि डिस्कस कर रहे हैं फर्मेंटेशन को एज अ प्रोसेस, एज अ तो कहाँ कहाँ ये प्रोसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं? सिर्फ क्या इससे हमें डेयरी प्रोडक्ट्स टाइप चीज़ें मिल सकती हैं, या जो हमने अभी रेंज एक देखी है, क्या हमें वही मिल सकती हैं, या इसमें और बहुत सारी और प्रोडक्ट्स हो सकती हैं? तो बिल्कुल एक बहुत बड़ी रेंज है जो हमें फर्मेंटेशन प्रोसेस से मिल सकती है. सो देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट फर्मेंटेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्मेंटेशन यू कैन गेट माइक्रोबियल बायोमास, जिसको आप फिर आगे क्लीनिंग करके आपको अवेलेबल है. जैसे हमें यीस्ट कमर्शियली अवेलेबल है, तो जो यीस्ट है वो क्या है? वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना. तो वो माइक्रो प्योर इटसेल्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको ग्रो किया गया है बाय फर्मेंटेशन. सो इट्स अ माइक्रोबियल बायोमास. इसके अलावा माइक्रोबियल एंजाइम्स हैं. हम देखें डिफरेंट डिटर्जेंट इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं फॉर क्लियरिंग ऑफ द रॉ मटेरियल. सो दैट एंजाइम्स दे आर कमिंग फ्रॉम द दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस. के माइक्रोब्स को आप ग्रो कर रहे हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस में, और वो माइक्रोब्स जो है एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं, और वो एंजाइम सिक्रीशन फिर आप उस कल्चर में से एक्सट्रैक्ट करते हैं विद डिफरेंट मेथड्स. वो हम आगे देखेंगे, इस पूरे कोर्स हमने ये चीज़ें देखनी है. तो वो एंजाइम फिर प्योरीफाई होकर मार्केट में अवेलेबल होता है, और उसको फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज पिक करती हैं और वो उसको यूज़ करती हैं. डाइंग में हो गया, डिटर्जेंट्स में डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, लेदर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं. तो वो सारे प्योरीफाइड एंजाइम्स जो हैं वो फर्मेंटेशन प्रोसेस ही बैकग्राउंड है उनका. ठीक है. उसके अलावा माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स हैं, डिफरेंट मेटाबोलाइट्स माइक्रोब्स के जो हैं वो दे आर यूज्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स. अब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीन्स जो हैं वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल के उसको आइसोलेट. फॉर इसकी कॉमन एग्जांपल इंसुलिन की मैं देती हूँ बार बार, कि इंसुलिन जो कमर्शियली अवेलेबल है अब उसमें क्या है कि ह्यूमनाइज्ड इंसुलिन की जो जीन है, ह्यूमन इंसुलिन की जो जीन है वो यूज़ की जाती है, और वो जीन जो है वो जीन फिर इंसर्ट की जाती है, वो जीन फिर इंसर्ट की जाती है किसके अंदर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे माइक्रोब के अंदर इंसर्ट की है. वो माइक्रोब फिर ग्रो करेगा मीडिया में, और उससे और उसकी फिर प्रोडक्शन से उसकी जो प्रोडक्ट रिलीज होगी उसको फिर कमर्शलाइज प्योरीफाई करने के बाद उसको कमर्शलाइज किया जाता है. सो दिस इज रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स. Then are the transformation processes. So different transformation processes, they had this fermentation background. So now we can look in detail at these groups. So microbial biomass means there are two major processes: the production of yeast, as I already told you, and the yeast used in the baking industry. And apart from baking industry, different microorganisms, microbial cells, they are used as human or animal feed, as we call single cell proteins.
जैसे अफ्रीका के इंडिविजुअल्स जो हैं वहाँ पर प्रोटीन बहुत डेफिशिएंट है उनके अंदर, तो उनको इंस्टेंट सोर्स ऑफ मीट आप कह सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मीट दीज माइक्रोब्स, दीज सिंगल सेल प्रोटीन्स, दीज माइक्रोब्स दे आर गिवन एज अ फीड in the form of single cell protein. ठीक है? So the Baker's yeast production, which has been produced on large scale and since early 90s, and that yeast was produced as human food in Germany during the World War. ठीक है? तो मतलब एज अ फूड भी आप इनको डायरेक्टली यूज करवाते हैं उन इंडिविजुअल में जिनके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। आप पढ़ के आए हुए हैं केशोकार, मेरास्मस, इस तरह के सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट को आप फिर कैसे करते हैं विद गिविंग सब सप्लीमेंट्स वगैरह, तो वो इस तरीके से उनकी प्रोडक्शन होती है उन सप्लीमेंट्स की। नेक्स्ट आर द माइक्रोबियल एंजाइम्स, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। ये एंजाइम्स जो कमर्शियली सिंथेसाइज हो रहे हैं, इनका सोर्स जो है वो प्लांट, एनिमल, माइक्रोबियल सोर्स कोई भी हो सकता है। माइक्रोबियल एंजाइम्स को फिर हम यूज करते हैं फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज में, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकाइनेजेस, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज एन एंजाइम जो कि एक बैक्टीरिया से आप यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द growth media of the microbe, and that streptokinase is used as the anti blood clotting agent in pharmaceutical. ठीक है? तो ये टैबलेट्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग को कम करवाती हैं, उसमें वो स्ट्रेप्टोकाइनेज रिस्पॉन्सिबल है, और वो स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ से आ रहा है? वो बैक्टीरिया से आ रहा है। ठीक है? तो इसी तरह बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी जो टैबलेट्स अवेलेबल हैं वो एंजाइम्स हैं, और वो एंजाइम्स जो हैं वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से आ रहे हैं। देन आर द माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स। माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स दो होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये होते क्या है मेटाबोलाइट्स? देखिए, जब भी कोई आप जैसे नॉर्मली आप एक डाइट ले रहे हैं, वो डाइट लेने के बाद वो डाइट जब आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होती है। अब वो ब्रेक डाउन जब होती है तो वो ब्रेक डाउन होने के बाद कुछ जो कंपाउंड्स बनाती है वो दे आर बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। सो they are different amino acids, different polysaccharides, ethanol, vitamins, so they are primary metabolites। बिल्कुल इसी तरीके से जो माइक्रोब्स हैं, जब उनके वो न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर से यूटिलाइज करते हैं चीज़ों को, तो वो डिफरेंट प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनाते हैं जिनको वो खुद यूज कर सकते हैं। अमाइनो एसिड वो खुद अपने प्रोटीन सिंथेसिस में यूज करेंगे, विटामिन्स जो हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे, एथेनॉल, पॉलीसेकेराइड। और ये प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है ये बनते किस फेज में है? ट्रोपोफेज में बनते हैं। अभी हमने फेजेस पढ़नी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, आप लोगों की बैकग्राउंड में मतलब पहले भी आप पढ़ के आए हैं फेजेस। दो फेजेस होती हैं माइक्रोबियल ग्रोथ की, ट्रोपोफेज एंड आइडोफेज। ठीक है? ट्रोपोफेज वो फेज होती है जब तक एक लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज, ये सारी फेज जो है ये ट्रोपोफेज में आती है। तो इस दौरान जब माइक्रोब ग्रो कर रहा है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो डिफरेंट मेटाबोलाइट सिक्रीट करा रहा है, उससे वो खुद ही अपनी जो है ना अपनी आपके लिए वेलफेयर के लिए यूज कर रहा है, अपनी नंबर को इंक्रीज करने के लिए यूज कर रहा है, तो दे आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये होते हैं कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इनफ पॉपुलेशन हो गई है, जितनी पॉपुलेशन मैक्सिमम उसने अचीव करनी थी, और उसके बाद डिक्लाइन प्रोसेस आने वाला है, डिक्लाइन से जरा पहले और स्टेशनरी फेज, इस दौरान जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह के कंपाउंड बनाता है जिसकी उसको जरूरत नहीं है, बस वो उसकी आप कह लो उसके मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है कि वो उसके अंदर से सिक्रीट होंगे, जैसे कि पेनिसिलिन है। ठीक है? तो ये मेटाबोलाइट्स जो है इनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, और कीपिंग इन व्यू द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, हम उस हिसाब से फर्मेंटेशन प्रोसेस को जो है डिजाइन करते हैं और उसको उसी तरीके से फिर मॉनिटर करते हैं कि अगर हमें ऐसे मेटाबोलाइट चाहिए जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के तौर पे हैं, तो हम पहले माइक्रोब को ग्रो करने देते हैं कि वो एक अच्छा उनका कल्चर बन जाए, एक अच्छी पॉपुलेशन हमारे पास आ जाए, उसके बाद फिर जो है ना हम उनको क्या करते हैं, टाइम देते हैं, या उनके अंदर एक ऐसा, ज्यादातर सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है ना वो माइक्रोब सिंथेसिस करते हैं इन रिस्पॉन्स टू सम इंड्यूसर। अब तक आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ के आ चुके हैं, आपको पता है इंड्यूसर्स क्या होते हैं। इंड्यूसर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो जीन लेवल पे जाके एक्टिवेट करते हैं, डीएनए के सर्टेन पोर्शन से जाके बाइंड करते हैं और सर्टेन जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं कि वो सिर्फ वही सिंथेसाइज करें। ठीक है? लैकोप्रोन आपने पढ़ी हुई है, लैक्सीजीन पढ़ी हुई है, तो वो बिल्कुल वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं कि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बनाना शुरू कर दे। तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि फिर आइसोलेट किए जाते हैं।
नेक्स्ट आर द रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने पहले बता दिया कि इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द रेसिपिएंट्स आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग फॉरेन प्रोटीन, इकोलाई, Saccharomyces cerevisiae, and the filamentous fungi. They have been used as a host for such system. And the product produced by such genetically engineered organism include interferons, जो कि कैंसर में यूज हो रहे हैं, इंसुलिन, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, फैक्टर्स 8 and 9 ऑफ दिस ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, एंड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारे के सारे जो है सिंथेसाइज हो रहे हैं, जो कि हाइट बढ़ा रहे हैं और इस तरह के ब्लड क्लॉटिंग प्रोसीजर के अंदर रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, एज एन आप कह लें मेडिसिन जो है, ये सारी रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स जो है वो यूज हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या है जी कि माइक्रोबियल सेल दे आर बी यूज टू कन्वर्ट अ कंपाउंड इनटू अ स्ट्रक्चरली रिलेटेड बट फाइनेंशियली मोर वैल्यूएबल कंपाउंड। ठीक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके आप एक इस तरह का कंपाउंड सिंथेसाइज करा रहे हैं जो फाइनेंशियली मोर वैल्यूएबल है फाइनेंशियली। सो द माइक्रोबियल प्रोसेस आर मोर स्पेसिफिक देन प्योरली केमिकल ones and enable the addition, removal or modification of functional group at specific site on a complex molecule without the use of chemical protection। तो आप माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं कि वो क्या करें, वो केमिकल नेचर को चेंज करें किसी कंपाउंड की, जैसे मिथाइलेशन का प्रोसेस है, माइक्रोब मिथाइलेट कर देते हैं और जो है वो डिफरेंट स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर मॉडिफिकेशन कर देते हैं केमिकल मॉलिक्यूल की। तो ये इस तरह के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस हैं वो इसमें वो भी फर्मेंटेशन के थ्रू होते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर जो फर्मेंटेशन है उसके अंदर फिर आपको बहुत और ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि कितने टाइम पीरियड के ऊपर आपने कौन सा केमिकल डालना है मीडिया के अंदर जो कि इसको चेंज करे, जिसको माइक्रोब चेंज करे, और माइक्रोबियल स्टडी आप इसकी पूरी करेंगे पर्टिकुलर माइक्रोब की, जैसे मेथानोजेंस हैं या जो हाइपरथर्मोफाइल्स हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से आप इन प्रोसेसेस को जो है वो फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब आ गया जी chronological development of the fermentation industry, but means with the passage of time how this industry get developed. So regarding this development, so this chronological development of fermentation industry के with the passage of time किस तरीके से fermentation industry develop हुई है उसको 5 overlapping stages में हम divide करते हैं। पहली stage कहलाती है pre 1900, मतलब 1900 से पहले किस तरह से fermentation use हो रही थी। Next stage है 1900 to 1940, then 1940 to present and 1964 to present and 1979 to present, मतलब ये सारे overlapping stages हैं। Stage 3 से onward जो है वो overlapping stages हैं। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कवर हो रही थी, मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो हैं वो डेवलप हो रहे थे। तो अल्टीमेट रिजल्ट आपको पता है लेटर आता है किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस का। तो ये उनकी स्टेजेस हैं। इसको हम मज़ीद अभी देखते हैं कि किसमें क्या-क्या काम हुए हैं। सो दीज आर द स्टेजेस, मतलब स्टेज 1 विच इज़ प्री 1900, मतलब 1900 से पहले जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस सिर्फ अल्कोहल और विनेगर सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता था, और उसमें जो वेसल्स यूज होती थी वो वुडन वेसल्स होती थी जिनकी कैपेसिटी जो है वो 1500 बैरल्स की होती थी, एंड यूज ऑफ थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर एंड हीट एक्सचेंजर, ये उसके प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ें हुआ करती थी। और जो स्ट्रेन यूज होता था अल्कोहल के लिए, आपको पता है प्योर यीस्ट कल्चर यूज किया जाता था, और विनेगर के लिए गुड विनेगर, मतलब जो विनेगर ऑलरेडी बनी, जिस तरह दही बनी हुई होती है उसको आप यूज करके मजीद दूध की दही बना लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से विनेगर को ही एज ए यू कैन के से स्टार्टर यूज किया जाता था मीडियम। और उसके लिए जो वेसल्स थे वो बैरल्स, शैलो ट्रेज और ट्रिकल फिल्टर्स जो हैं वो यूज किए जाते थे। बट 1900 से 1940s के बीच में अब आप देखें कि मुख्तलिफ मजीद प्रोडक्ट अल्कोहल और विनेगर के अलावा प्रोडक्ट्स सिंथेसिस हो रही हैं, जिसमें सबसे पहले माइक्रोबियल बायोमास में बेकर्स यीस्ट जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है। उसके अलावा ग्लिसरॉल एक प्रोडक्ट है, आप कह सकते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट के तौर पे है, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड एंड एसीटोन्स, ये सिंथेसाइज हो रहे हैं।
तो इसमें हो क्या, अब ये लैक्टिक एसिड, एसीटोन, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, ठीक है? क्योंकि माइक्रोब पायरुविक एसिड को ग्लूकोज को पायरुविक एसिड को यूज करेगा, तो वो लैक्टिक एसिड और सिट्रेट बनाएंगे, और लैक्टिक एसिड और सिट्रेट और एसीटोन जो है वो बैक्टीरिया के अपने किसी काम के नहीं है, वो मीडिया में एज अ यू कैन से एफिलुएंट्स क्रिएट करते रहते हैं, मतलब उनके लिए वेस्ट है। बैक्टीरिया के लिए ये वेस्ट है, लेकिन ह्यूमंस के लिए इसका एडवांटेज है सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड का। जो वेसल्स यूज होती थी वो एयर स्पार्जर्स कहते हैं, जिनके अंदर मतलब वो ऐसी टैंक्स जिनके अंदर एयर सर्कुलेट कर सके हैं, ठीक है? ये हम सारे डिटेल पढ़ेंगे फर्मेंटेशन टैंक्स के बारे में कि वो किस तरह के होते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स उनकी। सो ये भी अपने परेशान नहीं होना, ये हमने पढ़नी है हर चीजें, ठीक है? सो बेकर यीस्ट के लिए आप ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर एरिएशन चाहिए, वो उसके लिए फिर आपको एयर प्रोवाइड की जाती देते हैं, आप ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं प्रॉपरली एरोबिक टाइप ऑफ सिंथेसिस फर्मेंटेशन में। स्टील वेसल्स फॉर एसीटोन, एसीटोन के लिए स्टील वेसल इस्तेमाल हुए। मैकेनिकल स्टीयरिंग चाहिए, स्टीयरिंग मींस उसको शेक करना है, तो स्टीयर्स को छोटे मोटे चमचे नहीं होंगे, बड़े बड़े स्टीयर्स होते हैं, ठीक है? यूज्ड इन स्मॉल वेसल्स, तो मैकेनिकल स्टीयरिंग प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए जो प्रोसेस कंट्रोल के लिए चीजें इंट्रोड्यूस की गई, वो पीएच इलेक्ट्रोड का प्रोब इसमें डाला गया, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए इसके अंदर थर्मामीटर इंसर्ट किया गया। अब ये जो स्टेजेस है ना जिसमें ये बाय माइक्रोब्स या आप कह लें ये जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रही हैं, ये सिर्फ प्रोडक्ट सिंथेसाइज नहीं हो रही, ये साथ साथ आप कह लें इंजीनियरिंग की फील्ड जो है वो भी इसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व है, क्योंकि वो गाइड कर रही हैं। देखिए जब कोई टैंक बनेगा या कोई इंजीनियर एक सिंथेसिस करेगा किसी आप कह लें इक्विपमेंट की, तो उसके अंदर फिर वो प्रोसेस होता है ना। तो ये डिफरेंट जो है टाइम्स में डिफरेंट चीजें एस्टेब्लिश हुई हैं, ठीक है? आई होप आपको इस बात की समझ आ रही होगी। एंड देन प्योर कल्चर्स यूज किए गए हैं बेकर यीस्ट के लिए, और ग्लिसरॉल, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड के लिए जो जो माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल है उनके प्योर कल्चर्स पता ना कैसे बनते हैं, कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट मीडियाज के ऊपर ग्रो करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और फिर आप उनको जो उनकी प्योर कॉलोनी होती है उसको पिक करके, जिसके अंदर आपको पता होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सारी पॉपुलेशन है, कोई और टाइप ऑफ माइक्रोब यहाँ मौजूद नहीं है, उसे प्योर कल्चर कहते हैं हम, ठीक है? Then comes the stage 3 which is 1940 till present। इसमें फिर पेनिसिलिन, अभी भी पेनिसिलिन सिंथेसाइज हो रही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिबरेलिन्स, अमाइनो एसिड। जिबरेलिन्स जो है वो प्लांट हार्मोन है, ठीक है? ये प्लांट पे स्प्रे किया जाता है, तो दे आर स्टिल synthesized in this current era। सो मैकेनिकली एरेटेड वेसल्स यूज हुई, फिर अब ऐसी वेसल्स बनी, इंजीनियर्स ने इस तरह के बनाए बड़े बड़े वेसल्स जिसके अंदर उन्होंने फिर एरेशन प्रोवाइड करनी थी और साथ साथ उसको एजिटेशन भी देनी थी, तो मैकेनिकल एजिटेटर्स भी डाले गए, उनको भी साथ में अप्लाई किया गया। बेसिकली फर्मेंटेशन इंडस्ट्री जो है ना वो बायोकेमिकल तो कम ही है, इंजीनियरिंग की उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है ना स्पेस है। इंजीनियर्स ने उसके अंदर बहुत जो है ना इस इंडस्ट्री को बहुत बूम दिया है इंजीनियर्स ने, क्योंकि जितनी भी आप इंडस्ट्रियल स्केल पे जब जाते हैं ना तो आपको बड़ी बड़े इक्विपमेंट्स और बड़ी बड़ी चीजें चाहिए होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स, तो वो सारे के सारे आपको पता है फिर इंजीनियर्स ही उनको ड्रॉ करते हैं, उनको बनाते हैं। फिर इसके अंदर मजीद क्या चीजें आई जी, पीएच इलेक्ट्रोड के अलावा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड आया, फिर कंट्रोल लूप्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाए प्रॉपर पूरे लूप को, सर्कुलर जो उसके अंदर सारी चीजें मूव कर रही हैं, एयर हो गई, ऑक्सीजन हो गई, न्यूट्रिएंट मीडिया हो गया, उन सब की चीजों को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर एडअप किया गया फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर, खासकर फर्मेंटर्स के अंदर। स्ट्रेन्स की बात करें तो प्योर कल्चर्स के अलावा जो आप कह लें म्यूटेशंस के थ्रू कल्चर्स बनाए गए थे वो, या जेनेटिकली इंजीनियर जब शुरू हुआ काम 1980s में जाके स्टार्ट हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो वो वाले ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करके उनको फिर इसमें यूज किया गया। नाउ कम्स स्टेज 4। स्टेज 4 वो टाइम है 1964 टू टिल प्रेजेंट, जब जो है आपकी क्या कहते हैं जो आपका ये क्या नाम है उसका, यूएनओ जो है वो बहुत एक्टिव था, और उसने एक्टिव तो अभी भी है खैर, लेकिन उस वक्त बहुत एक्टिव था, तो उन्होंने उस वक्त डिफरेंट एरियाज में सप्लाई स्टार्ट की, फीड की, मतलब खुराक पहुंचाने की, खासकर अफ्रीकन एरियाज में और फार ईस्ट एशियन एरियाज में। तो उन्होंने फिर इंडस्ट्री को
डिमांड किया कि हमें इस तरह की प्रोडक्ट बना के दें जो कि ईज़ी टू कैरी हो बट न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी ज़्यादा हो। तो फिर साइंटिस्ट ने उसके ऊपर वर्कआउट किया और फिर सिंगल सेल प्रोटीन्स जिसके अंदर माइक्रोब्स जो हैं वो सिंथेसाइज़ किए गए और वो फिर एज़ अ फीड जो है प्रोवाइड किए गए। सो इसके अंदर जो वेसल्स यूज़ हो रही थी वो प्रेशर साइकिल एंड प्रेशर जेट वेसल्स हैं, मतलब प्रेशर का भी रोल आ गया इसके अंदर अब। पहले तो टेम्परेचर और एयर थी, अब प्रेशर भी आ गया। प्रोसेस कंट्रोल के लिए क्या किया जी कि कंप्यूटर लिंक्ड कंट्रोल डेवलप कर दिया। अब कंप्यूटर से अटैच हो गए हैं साथ और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो स्ट्रेन्स हैं वो सिलेक्ट हुए इसके अंदर। देन 1979 टिल प्रेज़ेंट हेटेरोलोगस प्रोटीन्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो कि आजकल मेन स्ट्रीम है फर्मेंटेशन का, कि जितनी भी कैंसर रिलेटेड मेडिसिन्स डेवलप हो रही हैं या जितने भी आप कह लें जेनेटिकल इश्यूज़ जो हैं, डिज़ीज़ेज़ जो हैं, उनके लिए जो मेडिसिन डेवलप हो रही हैं वो सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। तो इसके लिए फर्मेंटेशन जो है उसको ही उसका प्राइम आप कह लें इम्पोर्टेंस है। और फर्मेंटर जो डेवलप हुए हैं स्टेज 3 एंड 4 में उन्हीं उन्हीं के अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं और सेंसर्स डेवलप हुए हैं। टेम्परेचर सेंसर हो गया, ऑक्सीजन सेंसर हो गया, प्रेशर सेंसर हो गया, ये सारे सेंसर्स जो हैं वो इसके अंदर इन्हीं फर्मेंटर्स के अंदर एड अप हुए हैं। और फिर वही चीज़ के फॉरेन जीन्स जो हैं उनको माइक्रोबियल सेल या एनिमल सेल्स के अंदर इंक्लूड करके तो उनको फिर यूज़ किया गया एज़ अ स्ट्रेन और डेवलप कराई हैं मुख्तलिफ चीज़ें लाइक दिस प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज़। Now that is about the chronological development. Now comes toward the parts of a fermentation process. अब आप एक इंडस्ट्रियल स्केल लेवल पे चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसके क्या-क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए? सिर्फ क्या माइक्रोब और फर्मेंटर ही है जो चाहिए? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन मतलब सबसे पहले तो आपको चाहिए मीडिया जिसके अंदर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या एनिमल सेल को, प्लांट सेल को ग्रो करना है, ठीक है? सो द सबसे पहली चीज़ है फॉर्मुलेशन ऑफ मीडिया, वेदर यू आर गोइंग टू यूज़ लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, स्टैकिंग मीडियाज़, ठीक है? उसको डेवलप करना है और साथ ही साथ के इनोकुलम आप समझते हैं ना? इनोकुलम कहते हैं स्मॉल साइज़ स्टार्टर मीडिया को जिसके अंदर फ्रेश एक्टिव माइक्रोब्स होते हैं जो कि फिर उस बड़ी सारी वेसल के अंदर मौजूद मीडिया के अंदर मौजूद मीडिया को यूज़ करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करते हैं। अगर आप ओल्ड कल्चर्स लेते हैं, पुराने बूढ़े माइक्रोब्स लेंगे तो वो आपकी फर्मेंटेशन प्रोडक्ट को भी मतलब एक्टिवेट नहीं करेंगे। आपका जो काइनेटिक्स है फर्मेंटेशन की वो स्लो हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ क्या है फॉर्मुलेशन ऑफ मीडिया। नेक्स्ट इज़ द स्टरलाइज़ेशन ऑफ द मीडिया। ऑब्वियसली जो आपने मीडिया अब आप चूँकि माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स पढ़ आए हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि मीडिया जब भी आप बनाते हैं तो उसके बाद आपने उसको स्टरलाइज़ करना होता है। स्टरलाइज़ क्यों करना है? ताकि जो अनवांटेड जितने भी माइक्रोब उसके अंदर हैं वो सारे खत्म हो जाएँ और सिर्फ़ वो फ्रेश मीडिया हो उसके अंदर आपका जो डिज़ायर्ड माइक्रोब आप इनोकुलेट करेंगे, वो उसके अंदर जो है फिर अपना रोल अपना एक्टिविटी करे। So second is the sterilization of the media, not only the media but the fermenter as well as and the ancillary equipment। ये जितने भी प्रोब्स वगैरह हैं या जितने भी टेम्परेचर सेंसर्स और ऑक्सीजन सेंसर्स हैं उन सब को फिर आपने क्या करना है? आपने उन सबको स्टेरिलाइज करना है। सो द स्टरलाइजेशन ऑफ द मीडियम फर्मेंटर एंड एंसिलरी इक्विपमेंट्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है द प्रोडक्शन ऑफ एन एक्टिव प्योर कल्चर इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू इनोकुलेट द प्रोडक्शन ऑफ वेसल। आप सबको पता है दही को जाग लगाया जाता नहीं दूध को लगाया जाता सॉरी दूध को लगाया जाता है जाग। वो क्या होता है कि आप दूध को नॉर्मल ही प्रॉपरली मतलब बहुत तेज गर्म नहीं नॉर्मल गर्म करके आप दही का एक चम्मच उसके अंदर डालते हैं और उसको अच्छे से स्टर करते हैं और फिर उसको रख देते हैं। यही है ना? बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करने हैं वो एक्टिव होने चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला कि वो पुराने ना हो, बूढ़े ना हो, एक्टिव होने चाहिए और वो प्योर होने चाहिए। मतलब आपको पता हो कि ये सिर्फ यही वाला माइक्रो अगर आप लैक्टोबैसिलस यूज़ कर रहे हैं, लैक्टोबैसिलस का इनोकुलेशन दे रहे हैं तो लैक्टोबैसिलस ही होने चाहिए। उसके अंदर कोई जो है ना वो ई कोलाई या कोई स्ट्रेप्टोकोकस नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है? और वो सफिशिएंट क्वांटिटी में हो कि वो पूरी वेसल के अंदर जो लीटर्स में और गैलन्स में मीडिया मौजूद है उसको फर्मेंट कर सकें। ठीक है? तो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है जी ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब जो आप माइक्रोब यूज़ कर रहे हैं उसकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। मतलब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मीज़ोफाइल है तो आपको फिर उसको वही टेम्परेचर देना होगा। अगर आप उसको थर्मोफाइल का टेम्परेचर दे देंगे, उसका टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे फर्मेंटर का या फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डाई कर जाएँगे। जब वो डाई कर जाएँगे तो फर्मेंटेशन प्रोसेस तो ज़ीरो हो जाएगा, डिक्लाइन की तरफ आ जाएगा।
फॉलो कर रहे हैं आप लोग मेरी बात को? एटलीस्ट जो लोग मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं, वो एटलीस्ट अपना माइक ज़रूर ओपन करके मुझे जी मैम, बताते रहें। समझ आ रही है। हाँ, गुड, शाबाश। यस मैम। जी ओके। मैम। अच्छा जी, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द प्रोडक्शन फर्मेंटर अंडर ऑप्टिमम कंडीशन फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब आपने देख लिया कि पहली 3 चीज़ों में हमने मीडिया की बात की, मीडिया की स्टेरिलाइज़ेशन की बात की और प्योर कल्चर की बात की, लेकिन उसके साथ-साथ जब आपने मीडिया के अंदर डाल दिया माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हो गया और हीट अप ज़्यादा हो गया, या सपोज़ अगर आपके माइक्रोब्स जो हैं वो एनारोबिक थे, लेकिन उनको कहीं न कहीं एयर या ऑक्सीजन मिल गई, तो प्रोसेस तो डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा। आपका सारा का सारा मीडिया, आपको पता है गैलन्स में, इंडस्ट्रियल स्केल में जो मीडिया होता है ना, वही बहुत कॉस्टली होता है। आपने क्वांटिटी बढ़ानी है, जैसे ही आपको पता है ना, आप क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है? ऑटोमैटिकली उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसे ही है ना? तो यहाँ पर भी क्या है कि कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर आपका ऑर्गेनिज़्म ग्रो नहीं करेगा तो वो सारा का सारा वेस्ट है। सारी की सारी नुकसान है कंपनी को, ठीक है? सो ये चीज़ है कि आपने ऑर्गेनिज़्म को पहले स्टडी किया हुआ हो, स्मॉल स्केल पे, लैब स्केल में उसके ऊपर सारी वर्किंग की हुई हो, तब आप इंडस्ट्रियल स्केल की तरफ मूव करें। इसीलिए जितनी भी हम बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़्म या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स क्रिएट करवानी होती हैं, तो उसके लिए पहले प्रॉपर्ली लैब वर्क में उनको देखा जाता है कि वो इतनी एफिशिएंट हैं भी या नहीं है। फिर उसको पायलट स्केल पे लेके जाते हैं और फिर इंडस्ट्रियल स्केल इट कम्स, ठीक है? 3 स्केल्स हैं हमारे पास इंडस्ट्री में चीज़ को मूव करवाने के लिए, लैब स्केल, पायलट स्केल एंड इंडस्ट्रियल स्केल। ये भी आगे हमारे पास आने वाले लेक्चर्स में हम इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी, माइक्रोब ग्रो हो गए, माइक्रोब्स ने जो प्रोडक्ट बनानी थी वो बन गई है, प्रोडक्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपने फर्मेंटर बंद कर दिया, ठीक है? या अगर वो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस था, ये भी अब मज़ीद टाइप्स हैं इसकी फर्मेंटेशन की, वो भी आने वाले लेक्चर्स में होंगी। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ रही है, अब वो तो लिक्विड फॉर्म में है और उसके अंदर तो माइक्रोब्स भी हैं और उसके अंदर तो मीडिया का कंटेंट भी है, उसके अंदर वेस्ट भी है, तो क्या करेंगे आप? आपने अपनी प्रोडक्ट उसमें से एक्सट्रैक्ट करानी है, ठीक है? तो मतलब आप पहले फ़िल्टर करेंगे, फिर आप डिस्टिलेशन लगाएँगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, फिर आपकी प्रोडक्ट एक्सट्रैक्शन की तरफ आएगी, ठीक है? देखिए, आप साथ-साथ ये भी एस्टिमेट लगाएँ कि कॉस्ट भी आ रही है। मतलब आपको खर्चा करना पड़ेगा ना इन सब चीज़ों के लिए। तो जब आप खर्चा करेंगे तो जो प्रोडक्ट फाइनल आएगी, उसके अंदर ये सारी कॉस्ट शामिल होती चली जाएगी। जो बेचने वाला है वो ये सारी चीज़ के पैसे लगाएगा इसके अंदर, ठीक है? और वो जायज़ भी है लगाना, मैं ये नहीं कह रही कि वो उसको मुफ्त देनी चाहिए चीज़। ऑब्वियसली उसके पॉकेट से लगेंगे पैसे तो वो आपसे तो लेगा ना जब अपनी चीज़ को सेल करेगा। एंड द लास्ट थिंग इज़ द डिस्पोज़ल ऑफ द एफ्लुएंट। अब जो चीज़ें वेस्ट हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर जो वेस्ट डेवलप होगा, उसको भी आपने प्रॉपर तरीके से डिस्पोज़ ऑफ करना है। अब चूँकि आपने माइक्रोब्स ग्रो किए हैं, सो इट कंसीडर्ड कि ये जो मीडिया या जो बैकग्राउंड मटेरियल बच रहा है, दिस इज़ एग्रीकल्चरली बेनिफिशियल। सो आप इसको फिर दे सकते हैं डिफरेंट उनको, मतलब जैसे एनिमल फीड के अंदर ये शामिल हो सकती हैं, या ये आपकी किसी क्रॉप्स की रोटेशन में, क्रॉप रोटेशन का तो पता ही होगा मेरा ख़्याल है आप लोगों को, कि एक फसल के बाद जो दूसरी फसल लगाते हैं तो उसके बीच में वो क्या करते हैं, कुछ एक प्रॉपर वर्ड है मुझे भूल रहा है। मतलब ज़मीन के अंदर वो जब ट्रैक्टर चलाते हैं ना तो उसको कुछ बोलते हैं, मुझे भूल गया। हल चलाते हैं। हाँ, हल वगैरह चलाते हैं, नहीं उसका एक प्रॉपर वर्ड है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं भूल गया। हाँ। तो वो ज़मीन की जो भी वो करते हैं गोडी वगैरह, तो उसमें भी वो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि सॉइल को फर्टाइल कर सकें, और वो माइक्रोब जब उसपे आप अपनी क्रॉप ग्रो करवाएँ, तो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है। बिकॉज़ दिस इज़ ये जो मीडिया है ये बेसिकली कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस का ही तो सोर्स है ना, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये अगेन कुछ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, वाइन, बियर वगैरह तो पता ही है आप लोगों को। उसके अलावा चीज़ेज़ हैं और चीज़ स्लाइसेस हैं, और ये जितनी भी सॉसेज़ आपके पास अवेलेबल हैं, सोया सॉस के अलावा एचपी सॉस है, वर्सेस्टर सॉस है, ऑयस्टर सॉस है, ये सब क्या हैं? ये सब बेसिकली फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? दिस इज़ पिक्चर ऑफ अ फर्मेंटर, जो कि एक इंडस्ट्रियल स्केल का फर्मेंटर है, देखें कितना बड़ा है। अब इसके अंदर जो मीडिया होगा वो कितना गैलन्स में होगा, आप देखें कि इसके सारे सेंसर्स, ये आगे जो छोटी-सी ये बनी हुई है ना, यहाँ पे इसके सेंसर्स हैं, जिस तरह एक बड़ी सारी टैंकी के साथ टूटी लगी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ढेर है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली टेक्निकल चीज़ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सेंसर्स हैं। टेम्परेचर कंट्रोल पॉइंट यहाँ पर है, इवन के आपके मीडिया की क्वांटिटी कितनी है वो भी यहाँ पर आपको डिजिटली शो हो रही होगी। तो इस तरह के फर्मेंटर्स हैं जो इंडस्ट्रियल स्केल पे चलते हैं। हमने ये सारी की पढ़नी है अभी कि किस तरह से वर्क करते हैं, मैथ्स क्या है इसके पीछे, फिजिक्स क्या है इसके पीछे, वो सारे हमने पढ़ने हैं अभी आने वाले लेक्चर्स में।
So this is all about today's lecture. If you have any question, जितना भी आप लोगों ने अब तक सुना है, आप मुझसे अभी सवाल करना चाहते हैं तो अभी कर लें। अभी लेक्चर का टाइम पड़ा है, व्हाट्सएप पे पूछ लें। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम टू आस्क। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? जो लोग यहाँ मौजूद हैं, No, ma'am. बाकी भी आप कंप्लीट सुन के लेक्चर तो पूछ सकते हैं। ठीक है जी? Okay, ma'am. Okay, okay. Please don't leave meeting. I'm just ending the recording. Okay, students, Allah Hafiz.